क्या बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ? Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Simran Poddar and you're watching Life at NIFT. So it will become life after NIFT or maybe life after NIFT, life in NIFT हट जाएगा और this will become only Simkaju. Yes. So अगर आप सिमकाजू को नहीं जानते हो तो मैं अभी जस्ट रीसेंट ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम निफ्ट पटना. आई हैव बीन डूइंग फैशन कम्युनिकेशन फ्रॉम निफ्ट पटना बैच. और येस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू हैव आइदर क्रैक्ड निफ्ट और एंड you are about to step into the NIFT world. So first of all, congratulations, and second, brace yourself because this video will be very helpful for you. क्योंकि जो चीज़ें मुझे नहीं बताई गई थी, I would like to tell you guys. These little insights are very important before you are going to college or design college. You should know. और अगर मुझे पता होता maybe it will might help me out और देखते हैं आपको कितना हेल्प करता है. येस, सो द वेरी फर्स्ट थिंग विल बी यू शुड नो हाउ टू मेक पीपीटी और you should know how to create documentation, how to create presentation, because in your entire NIFT journey you will be presenting PPTs only to present any design. आप ऐसे बोलकर अपना डिज़ाइन एक्सप्लेन नहीं कर सकते. यू हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन, अ ब्रीफ नॉलेज ऑफ what will you be using, what is your design info, what is your mood board. So here and there you should know what is font, what is the font size, what will be the font size for making presentation और कौन सा font क्या represent करता है. there is a lot of font और किस font से presentation नहीं बनता है and what font should be मतलब you should use for readability. sans serif हो गया. so these little things ना you should know before joining into NIFT or any design college, I would say, because these things will help you out to create clean communicating presentation for your design. ठीक है, so there are few tools you can use for making PPT. First of all is Microsoft presentation because it is a industry standard कि तुम PPT जो है वो Microsoft presentation में बनाओ and it will be very great for you if you know this, because अगर इंडस्ट्री में जाओ तो you have to use this. And second is very easy is Canva. and start ही लोग Canva से करते हैं क्योंकि कैनवा पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है. देयर आर लॉट ऑफ आइकन, देयर आर लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस, देयर आर लॉट ऑफ कटआउट फोटोग्राफ्स, PNG फोटोग्राफ्स, इलस्ट्रेशंस, फोटोज़, फ्रेम्स, टाइपोज, इफ़ेक्ट्स. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो for the starting you can do Canva thing and then after knowing हाँ ठीक है ये चीज़ें यहाँ से होती है, ये ऐसे चीज़ें होती है, after knowing the little bit of presentation thing you can start with going for PPT or Microsoft presentation. ठीक है, and after that you can also use Figma because if you Figma has just launched, not just launched, I think for 6 or 7 months it has launched Figma presentation. I don't know exact date or exact month but मैंने कुछ दिन पहले ही Figma पे presentation की चीज़ें देखी थी और मैं फिर उस पर बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने Figma पे. It was a very easy tool if you know. So Figma पे presentation बनाना is very easy I guess. ठीक है, और you can make presentation on Illustrator. ठीक है, if you know the tool. तो इलस्ट्रेशन पे आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ फ्री पिक इज़ अ वेबसाइट. ओके. तो फ्री पिक क्या है? इससे जाने से पहले जैसे प्रेजेंटेशन पे आप बनाते हो ना कुछ भी, तो इफ़ यू नो देयर आर लॉट ऑफ टूल्स जहाँ पर यू विल गेट आइकन्स, यू विल गेट पिक्चर्स, you will get free pictures, I would say, limited edition. With the website is called FreePic. Where you will get vectors, PNGs, illustration file, SVGs,
ठीक है, ये सब के बारे में भी थोड़ा समझ लेना कि एसवीजी क्या होता है, पीएनजी क्या होता है, जिपैक क्या होता है, एआई क्या होता है, और ये सब चीज़ें थोड़ा पता कर लेना कि क्या होता है, क्योंकि दीज आर द वेरी बेसिक फ्यू थिंग्स जो तुम्हें हेल्प करेगी फॉर, आई थिंक इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट यू, जब मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन बनाना था ना, तो आई हैव नथिंग, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता था प्रेजेंटेशन कहाँ बनाना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो मैंने स्टार्ट कैनवा से किया था, वो कैनवा के बारे में भी नहीं पता था। मैंने किसी से पूछा था, भाई मुझे प्रेजेंटेशन बनाना कैसे बनाऊँ, क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने बड़े बड़े फॉन्ट्स डाले उसमें, बड़े बड़े फॉन्ट्स, जो कि आज मैं अगर वो प्रेजेंटेशन देखती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है बाय द वे, क्योंकि पता नहीं क्या था, बस फ़ोटोज़ डाल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बस कर दिया जो करना था, प्रेजेंटेशन बनाना था बस बना दिया। तो you should have the knowledge of these little things, it will really grateful अगर आप थोड़े थोड़ी चीज़ें पता कर लो। ओके, तो second thing I would say have a little knowledge of software you will use, ठीक है, थोड़ा थोड़ा knowledge, because it will help you a lot in a design college. Photoshop, Illustrator, InDesign, ये 3 चीज़ें तो तुम्हें हेल्प करेंगी ही करेंगी। आप चाहे आप टेक्सटाइल में हो, फैशन कम्युनिकेशन में हो, या फिर एफडी में हो, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको अगर पता होगी ना, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। और इन द फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, जो आपके फर्स्ट ईयर फाउंडेशन ईयर होंगे ना, उसमें आपको सिखाएंगे, बट डोंट आई विल से डोंट बी जस्ट उनके ऊपर ही आश्रित का इंग्लिश क्या होता है, डिपेंड, यस, डिपेंड मत होना प्लीज़। क्योंकि वो मत ये सोचो कि भाई कॉलेज तुम्हें सिखाएगा कि हाँ ये टूल ऐसे काम करता है, ये टूल ऐसे काम करता है, ना, वो तुम्हें सिर्फ बता देंगे कि तुम्हें ये असाइनमेंट करनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें ऊपर से बता देंगे, और उसके बाद तुम्हें बोलेंगे करो, जो करना है तुम करो, वो तुम खुद करके लाओ, ठीक है, वो तुम करके लाओ, हमने तुम्हें दिया है। तो वो फिर तुम्हें फिगर आउट करनी होगी कि तुम किस तरीके से उस काम को करते हो, तुम कितना डीप जा रहे हो, तुम कितना बाहर ऊपर से बस काम ख़त्म कर रहे हो। अगर मुझे पता होता कि भाई ऐसा होने वाला है, तो मैं पागलों की तरह वो सारे सॉफ्टवेयर सीख लेती पहले ही, ठीक है। शॉर्टकट्स वगैरह याद करना स्टार्ट कर दो, किस चीज़ के क्या है नहीं है, क्योंकि अगर तुम ये सोच के बैठोगे कॉलेज तुम्हें सिखाएगा, नहीं सिखाएगा, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि कॉलेज तुम्हें ये सब छोटी छोटी चीज़ें नहीं सिखाएंगे। तो वो तुम अपना देख लो कैसे तुम्हें सीखना है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, तो थोड़ा छोटा चीज़ें आई वुड से कि थोड़ा यूट्यूब वीडियो देख लो, थोड़ी अगर फ़ोटोशॉप करना है, किस तरीके से किसी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है, अब तो बहुत इजी हो गया, पहले करना पड़ता था कुछ, तो अब तो इजी हो गया थोड़ा सा। और कॉलेज में जाते के साथ ही कॉलेज का आईडी से मांगना कि मुझे चाहिए ये सब चीज़ें, सॉफ्टवेयर्स चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो लोग काफ़ी लेट कर देते हैं। हमारा तो कोविड बैच था भाई, हमारा हर चीज़ ही अलग हुआ था हर लोगों से, तो मुझे ऐसा फील है कि आप लोगों को ज़रूर मिल जाना चाहिए, तो यस, जाते के साथ ले लेना। और क्या है, हाँ, सॉफ्टवेयर थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाना चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें पता है, क्योंकि आप जब ऐसे ग्रेजुअली लर्न करोगे तो आपको पता होगी। बट ट्राई करो, एक पोस्टर बनाने का ट्राई करो, या फिर मूड बोर्ड क्रिएट करने का ट्राई करो, बैकग्राउंड रिमूव करके मूड बोर्ड इंस्पो देखो। ओके, सो ये तो हो गया, अच्छा, ओके, नाउ फॉर द इंस्पिरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अब ये सब टर्म्स एंड वर्ड्स, कीवर्ड्स जो है वो आपको थोड़े थोड़े करके दिन के बाद ऐसे भी पता चलने ही वाले हैं, तो बट नाउ Pinterest is one thing जहाँ पर you can have the inspiration, you will have the create, मतलब मूड बोर्ड क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। what aesthetic you like, what type of colors you like, what are the color palettes of it, कलर पैलेट क्या होता है, किस तरीके से कलर पैलेट यूज़ होते हैं, फॉन्ट्स क्या क्या यूज़ कर सकते हो, किस चीज़ के लिए क्या सही रहता है, टेक्निकल चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद बिहान्स हो गया फॉर इंस्पिरेशन, गो मेक अ अकाउंट ऑन बिहान्स की, बिहान्स पे, और डोंट मेक बिहान्स
का प्रोफाइल, सॉफ्टवेयर का प्रोफाइल, बिहांस ऐप का प्रोफाइल ऑन कॉलेज के आईडी से, इट विल माइट गेट प्रॉब्लम, जो कि मैंने कर दिया है। अब मुझे करना पड़ेगा कुछ तो, क्योंकि वो आईडी कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएगी और मैंने जो भी किया है ना काम, वो मुझे प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो ये मत करना, निफ्ट के आईडी से मत बनाना, अपनी पर्सनल आईडी एक रखो फॉर वर्क ओनली। और ऐसा इंस्टाग्राम ऑलरेडी तुम्हारा पोर्टफोलियो बन चुका है, क्योंकि कोई भी जो भी तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होगा वो तुम्हें उस इंस्टाग्राम से फॉलो करेगा, और उसके बाद तुम्हारा परसेप्शन जो है, तुम्हारी जो एक पर्सनालिटी है, वो उस तरीके से बिल्ड हो जाएगी कि अगर तुम इंस्टाग्राम पे बहुत ओपनली अपने काम को शो कर रहे हो तो या शो मतलब अगर जो दिखता है वही बिकता है, बाय द वे। तो मेरा कहना यही है कि अगर इंस्टाग्राम है आपका तो ये ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो बनना स्टार्ट हो गया। इफ़ यू आर someone who is more into styling, who is more into fashion designing, textile designing, तो आपका इंस्टाग्राम पोर्टफोलियो बनना स्टार्ट हो गया है। इफ़ यू वांट टू मेक अनदर अकाउंट जहाँ पर आप ये सब चीज़ें डाल रहे हो तो वेल एंड ग्रेट, इट्स वेरी गुड थॉट। और एंड ऑल्सो द थर्ड थिंग विल बी गो एंड सर्च फॉर द फैशन ट्रेंड्स। Fashion trends, what is fashion trend, what is runway, what is winter collection, what is summer collection, how they starting their collection. Go and watch some documentaries, YouTube videos और some brands के बारे में go and watch कि किस तरीके से वो लोग काम करते हैं और क्या क्या उनकी हिस्ट्री थी, how it evolved, how fashion trend works। तो ये सब चीज़ के बारे में गो एंड सर्च, क्योंकि जब ये टर्म्स आएंगे ना, रनवे, कैन फेस्टिवल, मेट गाला, इसने ये पहना था, उसने वो पहना था, प्राडा, लुई विटॉन, ये सब चीज़ें हुई थी, तो यू विल गेट कन्फ्यूज। सो बिफोर दैट यू शुड हैव सम बेसिक नॉलेज, क्योंकि जब मेरा जो फर्स्ट डे था ना और ये क्लास थी, ठीक है, बाय द वे, तो मेरा तो बहुत गंदा हालत था, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। कुछ लोगों को तो फिर भी पता था ये सब चीज़ के बारे में, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आई वॉज नॉट मोर इनटू फैशन। ठीक है, मैं फ़ैशन के उसमें नहीं थी, मुझे डिज़ाइन पसंद था पर मैं फ़ैशन नहीं था, मेरा फ़ैशन डिज़ाइनिंग चीज़ नहीं थी। ठीक है, तो उसकी वजह से आई वॉज नॉट इनटू दैट कि हाँ ये मेट गाला लुक है, ये ऐसा, तो वो चीज़ मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी बिल्कुल ही। बट इन द फर्स्ट फाउंडेशन ईयर यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दिस, यू हैव टू लर्न मटेरियल्स कि क्या मटेरियल्स है, क्या फैब्रिक है, क्या किस तरीके से, क्योंकि जब हमारा कोविड बैच था हम तो फिर भी बच गए, बट यू विल नॉट, तुम नहीं बचोगे। तो अपना वो कर लो, कस के पेटी बांध लो, क्योंकि तुम्हारे तो 9 से 5 बजे तक बस तुम्हारा टाइम कैसे जाएगा, क्या होगा, तुम एक निफ्ट के दुनिया में ऐसा बनोगे और फिर वो जब बाहर की दुनिया से तुम्हें कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि तुम उसी में, तुम्हें फिगर आउट करने में टाइम लगेगा ना कि हाउ विल यू क्रिएट टाइम मैनेजमेंट और कैसे तुम करो, कोप अप करो, क्योंकि अचानक से यू विल गेट सो, इट विल बिकम ओवरवेलमिंग टू यू। ठीक है, now the fourth thing will be, I would say, if you're going somewhere, like if you're going to NIFT Patna, if it is selected कि if you're going to NIFT Patna, if you're going to NIFT Delhi, or if you're going to NIFT Gandhinagar, so अगर तुम NIFT Patna में आ रहे हो, go and search for the crafts। ठीक है, go and search for Madhubani, go and search for Sujni, go and search for Tikuli art, क्योंकि wherever you will go you will have to study about the craft and art for this region or state। ठीक है, just like that कि बिहार में you will get to learn Madhubani, you not get to learn Madhubani, but you will have to figure out कि how Madhubani evolve, what are the uses of that, how we can help artisan to get more products or to get more values what they have, they are willing to do। If you are going to NIFT Gandhinagar, search for Bandhani, search for Patola। If you are going to NIFT Delhi, you have to you have to little knowledge of art and craft like Zardozi or Mughal textile। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा you have to learn। ठीक है, also there are stationery products which I have already made
2 times I have already made. I will link it in the description box what stationery products you will need in your first year. There are और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो you will need, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें न्यू आते रहती है. हमारा तो कोविड बैच था. I have said this twice in this video कि हमारा तो कोविड बैच था. तो हमारा तो कोविड बैच था 4th टाइम. तो हमने जितना सामान हमें मिल पाया इधर उधर से, क्योंकि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कोविड के टाइम पे गया है. तो हम लोग सेकंड के एंड में कॉलेज गए थे, एंड और स्टार्टिंग में कॉलेज गए थे. तो यस, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो घर के पास ही आसपास से जो मिल पाए हमने यूज़ किए, नहीं तो नहीं किए. तो यू विल आल्सो हैव टू लर्न मटेरियल्स, लर्न मटेरियल, हाउ डिफरेंट मटेरियल कैन यूज़. ठीक है. सो आई गेस मैं बहुत ज़्यादा ठीक है बोलने लगी हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है. ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई होप कि ये जो चीज़ें मैंने कुछ बताई हैं वो तुम्हें किसी और ने तो नहीं बताई, क्योंकि मैंने देखे हैं भाई वीडियोज़, और मैं कभी कभी देखते रहती हूँ. मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं देखा है, बट हाँ, जितना भी मैं आ रही थी तब मुझे तो किसी ने नहीं बताई थी कि ये सब चीज़ें करना. तो there are very few inside videos or few people who make really good insights about design college, और मैंने उनके ही कुछ वीडियोस देखे थे. बस मुझे लगता है आज भी ये थोड़ा हेल्पफुल तो होगा, बिकॉज nobody knew these little things you have to know. और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं. सोचा why not to make a video regarding this. You will be seeing sit down videos for these informations अभी थोड़े दिन तक, बिकॉज आई थॉट सिटिंग वीडियो बना के ख़त्म करो भाई. ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी चीज़ें बना के ख़त्म करो. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना. जो आपके आसपास बहुत सारे मम्मी पापा मेरी वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो आप अपने बच्चों को भी शेयर कर देना, आप भी देख लेना. और ओके, बाय बाय. होप यू लाइक दिस वीडियो.